Dear students, I'm going to discuss with you counts, percentages, and proportions. So, this time we are talking about data that are not necessarily numeric. इस तरह के डेटे को हम समराइज अगर करना चाहें तो हम क्या करेंगे? जाहिर है कि हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन उस टाइप की चीज़ें तो नहीं निकाल सकते। तो अगर वो कैटेगोरिकल डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं? One of the basic things that we can do is to count the number of observations that are falling in various categories. So, actually, these counts or these frequencies, they represent the most elementary summary statistic for categorical data. अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. Um, we can remember what we did when we computed the mode for a numeric data set. आपको याद है कि हमने टेबल फंक्शन इस्तेमाल किया था जिसके ज़रिए we obtained a frequency table. तो अब again we can use that same function and we will get a frequency table. The frequencies will obviously be numbers, but the categories are going to be non-numeric. तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ from the Chick-Waits dataset, which is inbuilt in R. You already know it, but if you allow me, I can show it to you one more time. And if I go to R, I already have it here from a previous session, and I'm going to show it to you. ये देखिए, ये दो हैं columns. One is the column of the weight of the chick, और दूसरा जो है, that is the type of feed that is being given to that little chicken. तो उसमें अब इस वक्त हम interested हैं not in the first column, but in the second column, the various types of feed. And we just want to know how many chicken or chicks were fed each one of these types. तो फिर वो frequencies ही हमें चाहिए ना. We need the count or the frequency. तो अब इसमें अगर वो करना है तो टेबल फंक्शन जैसे मैंने कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे. तो फिर हम क्या करें, क्या लिखें? पहले आप स्लाइड के ऊपर देख लीजिए. यू सिंपली नीड टू राइट TABLE और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने उस डेटा का जो नाम है इस डेटा सेट का वही टाइप करेंगे और उसके साथ ही फ़ौरन डॉलर साइन के साथ आप अगला उसके फ़ौरन बाद क्या लिखेंगे? द टाइटल ऑफ दैट कॉलम विच इज़ द नॉन न्यूमेरिक कॉलम और वो आपने अभी देखा कि फीड लिखा हुआ था. तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ जी. सिर्फ उसका आखिरी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में बंद नहीं कर रही ताकि वो एकदम से एग्जीक्यूट ना हो जाए. मैं आपके सामने उसको करूँगी. लेट मी गो डाउन अ बिट एंड लेट मी पुट इट हियर. अब अगर देख लीजिए कि मैं इसको बंद करूँ और इसको एंटर करूँ तो क्या होता है? लेट्स सी. देयर यू आर. देखा? विदिन अ स्प्लिट सेकंड you got the count. You got the counts of the different types of feed. So 12 chicken were given casein, 10 were given horse bean, 12 were given linseed, 11 meat meal, 14 soybean, and 12 sunflower. यानी मोर और लेस इक्वली नंबर्स में उन्होंने फीड किया. ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया. अच्छा जी, ये बात हो गई बुनियादी कि हाउ यू कैन फाइंड द काउंट. लेकिन अब इससे अगली बात ये है कि नॉट ऑल द टाइम यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट द काउंट. You would find it more informative if you would compute the proportion. And you can express the proportion as a number lying between 0 and 1, or you can express it in percentage form by multiplying by 100. So actually proportions and percentages are one and the same thing. सवाई इसके कि थोड़ा सा the way of presenting it is just slightly different from each other. So let me now go to the next slide. And whatever I've just said, that's there. लेकिन जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है
कि जब आप प्रोपोर्शंस निकालते हैं, देन यू आर एबल टू कंपेयर your measures across multiple data sets. Proportion is a unitless number. Count is also a unitless number. लेकिन काउंट में ये है ना जी कि वो टोटल नंबर, जैसे चिक वेट्स का ये वाला जो डेटा है उसमें 71 है, लेकिन अगर आप किसी और के साथ कंपेयर करना चाह रहे हों और उसमें जो टोटल नंबर है दैट इज़ 207, तो फिर वो काउंट will not work. Then you should find proportions here and proportions there, and then you can compare. So how do we do this? कैसे करेंगे? देखिए, it's quite simple. अगर हम ये टेबल फंक्शन ही को इस्तेमाल करना चाहें तो all we have to do is कि ये जो अभी-अभी लिखा था, जहाँ तक मैंने हाइलाइट किया, that will give you the count. लेकिन उसके बाद आप स्लैश डालें टू इंडिकेट कि हम डिवाइड करने लगे हैं उस चीज़ को किसी और चीज़ के साथ, और वो क्या चीज़ है जिसको आप करेंगे इसके बाद लिखेंगे, दैट इज़ एन रो। आपको याद होगा कि एन रो वुड गिव यू द नंबर ऑफ रोज इन योर डेटा सेट। तो वो जो आपको अभी मैंने दिखाया वो तो कॉलम वाइज था ना, लेकिन वो इसलिए कि वो एक डेटा फ्रेम की शक्ल में दिया हुआ है। अदरवाइज वेक्टर जो है आपको पता है कि वो रो की फॉर्म में ही होता है, और वही डेटा अगर वेक्टर की शक्ल में लिखा जाता तो वो रो ही होती। सो एन रो वुड विल वर्क फॉर यू। इनफैक्ट अगर आप इसको इस तरह से भी देखें कि ये जो डेटा फ्रेम है इसमें भी इनफैक्ट ये नंबर ऑफ रोज ही हैं। ये देखिए, ये सीरियल नंबर जो है इसमें 68, 69, 70, 71, तो रो वाइज ही आप काउंट कर रहे हैं ना। 71 नंबर आपको कॉलम वाइज नहीं मिलेगा, रो वाइज ही मिलता है। सो मैट्रिक्स के हिसाब से भी चलें तो ये बिल्कुल ठीक है कि द नंबर ऑफ रोज आर 71 in this 71/2 मैट्रिक्स। सीरियल नंबर को छोड़ के जो एक्चुअल डेटा है 71 rows 2 columns, so it's a 71/2 matrix and n row is equal to 71. So that's great. अब देखिए, ये आपने स्लैश डाला था और उसके बाद आपने एन रो लिखा, लेकिन वो फिर आर पूछेगा कि जी किसका एन रो आप कह रहे हैं, तो आपको जाहिर है कि उसके बाद अपने पैरेंथेसिस के अंदर अपना जो डेटा सेट का जो नाम है वही आपको डालना है। अम, जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करेंगे यू विल गेट दीज numbers which are numbers lying between 0 and 1. In other words, they are the proportions. So let me do this for you. मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ और इसके बाद I would like to paste it and then I will complete the code. अभी मैंने एक आखिर का parenthesis छोड़ दिया था। इसमें ये ऊपर जो है पहले ये आ गई ये टेबल, ये पहले से आई हुई है रादर, और उसके बाद अब ये जो मैंने डिवाइड किया तो अब पैरेंथेसिस एंड किया तो डिवाइड वाला, तो अब मैं देखिए एंटर करती हूँ एंड यू गेट दिस, वही एग्जैक्टली जो आपके स्लाइड के ऊपर है। अगर आपको कोई इसमें शक है तो प्लीज़ आप अभी 12 को 71 से डिवाइड करके देख लीजिए। चलिए मैं आपको यहीं पे कर देती हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 71, इसको एंटर करें and you get exactly this number 0.1690141, राइट। चलें जी, ये हो गया, लेकिन बात ये है स्टूडेंट्स के, व्हाई डू यू हैव टू इवन डू दिस कि आप पहले वो करें फिर स्लैश और फिर सारा कुछ। व्हाई डोंट यू यूज अनदर मेथड, जैसा कि ऑथर ने लिखा हुआ है कि of course you need not do everything associated with counts via table. वो कहता है कि a simple sum of an appropriate logical flag vector can be just as useful. तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, आपने अपने आप को ट्रेन करना है फॉर डीलिंग विद लॉजिकल्स। जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी गुड फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए, ये
आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ट्रू जो है दैट इज़ ट्रीटेड एज़ 1, TRUE, अपर केस जो हम लिखते हैं, ट्रू फॉल्स लॉजिकल्स में जो हमने पहली चीज़ पढ़ी, तो आपको पता है कि वो इट इज़ ट्रीटेड एज़ 1 और फॉल्स जो है दैट इज़ ट्रीटेड एज़ 0। कब? Whenever you are doing arithmetic treatment of logical structures in R. Therefore, um, the function sum, that will give you the desired frequency, क्योंकि जो मिसाल के तौर पे सनफ्लावर का करना है, तो वो सनफ्लावर्स जहाँ पे ट्रू आ रहा है, वो 1 1 1 1 1 उसको ऐड करेगा, सम करेंगे तो ऐड करेगा ना, तो वो आपको काउंट दे देगा उसका। बाकी सबको उसने ज़ीरो कर दिया। इसी तरह कोई भी आप करेंगे तो वो आपको काउंट्स दे देगा। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको अ, आपके सामने रखूँ, ये जो मैंने बात कही इसी को हम अगर एग्ज़ीक्यूट करें तो क्या होगा? ये देखिए, लेट मी ओनली यूज़ दिस मच ऑफ व्हाट वी हैव इन द स्लाइड। अभी डिवाइड वाला मैंने नहीं उसमें किया, तो इसको मैं आपके सामने आर पे करती हूँ। ये मैं पेस्ट कर रही हूँ और इसको अब मैं एंटर करूँगी एंड देयर यू आर। ये जो काउंट, ये देखिए, पहले आपको 14 मिला था ना, वही आपको यहाँ पे लॉजिकल फ्लैग वेक्टर लॉजिकल वाले तरीके से मिला है। क्यों? लेट्स गो टू द स्लाइड एंड लेट मी शो यू। यहाँ पे आपने ये डबल इक्वल किया था ना, सम लिखा बाहर, अंदर लिखा चिकविट्स, डॉलर साइन फीड, यानी वो वाला कॉलम, और उसके बाद डबल इक्वल सोयाबीन, यानी कि आप इंडिकेट कर रहे हैं कि हम सोयाबीन वाला जगह पे हमने जाना है। तो वो फिर उसने 1 1 1 1 करके वो जब सम ऐड किया तो 14 बना, बिकॉज़ देयर आर 14 ऑफ देम। इसके बाद अगेन इसको भी अगर आप स्लैश डाल के आगे एनरो चिक्वेट्स लिखेंगे, तो ज़ाहिर है कि वो डिवाइड करेगा बाय 71, और फिर उस केस में यही 14 जब 71 से डिवाइड होता है, तो आपके पास आ जाता है 0.1971831। अम, लेकिन यही काम आप फिर इस तरह क्यों करें? व्हाई डोंट यू सिंपली राइट MEAN? यानी आप ये सम की जगह सीधा मीन लिख दीजिए। जब डिवाइड कर रहे हैं उससे, तो वो मीन ही बन रहा है ना जी। तो मीन लिख दीजिए और बाकी जो कोड है अंदर वो उसी तरह है पहले की तरह। तो अब इसको भी मैं आपके सामने एग्ज़ीक्यूट करती हूँ। ये पूरा मैं कॉपी कर रही हूँ और ये शायद इमीडिएटली एग्ज़ीक्यूट कर देगा। लेट्स सी, पेस्ट, अभी इसने नहीं किया तो मैं एंटर करती हूँ एंड देयर यू आर, 0.1971831। अब इसमें जो पहले हमने टेबल वाले तरीके से किया था, तब हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा था सोयाबीन का, ये पीछे जाके हम देखते हैं। ये देखिए, एग्ज़ैक्टली यही था। तब हमने टेबल वाले तरीके से ये किया एंड दैट वाज़ 0.1971831, यही एग्ज़ैक्ट जब अभी हमें मिला है। सो दीज़ आर 2 डिफरेंट वेज़ ऑफ डीलिंग विद दिस थिंग, और मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि यू शुड ट्राई कि आप इसकी आदत डालें। The last thing that I would like to talk about before I close this module is uh, that you can use this approach to calculate the proportion of entities in combined groups also. ग्रुप्स को कंबाइन करके भी आप कर सकते हैं, और वो कैसे होगा? थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड। इसकी एग्जांपल देखिए। अगर हम इस बात में इंटरेस्टेड हों that we want the proportion of chicks fed either soybean or horse bean, कि हम कहें कि चलो वो या वो बताएं कि कितने प्रोपोर्शन ने खाई वो वाली फीड।
तो कैसे करेंगे आप? आप MEAN लिखेंगे क्योंकि हम लॉजिकल वाला कर रहे हैं ना, तो अभी आपको बताया कि वो जो काउंट है उसको डिवाइड अगर करेंगे 71 से, तो उसको 1 + 1 + 1 के हिसाब से वैल्यूज़ को ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड किया, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हैं, तो फिर वो प्रोपोर्शन ही बन जाता है। तो मीन आपने गोया जो लिखा टू फाइंड दैट प्रोपोर्शन, उसके बाद ये देखिए, ये डबल इक्वल आपने किया था ना पहले सोयाबीन के लिए। अब आपने इधर आपने जो बीच में ऑपरेटर जो डाला है, ये वर्टिकल लाइन आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी डन इट। दिस इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर और। तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे आपने सोयाबीन वाला डाला और राइट साइड पे हॉर्स बीन। तो उसका क्या मतलब हुआ? वही हुआ ना कि दोज़ chicks who were fed soybean or those chicks who were fed horse bean। तो अब इसका ये निकला है रिजल्ट 0.3380282। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड जहाँ पे हम अलग-अलग से हमने इनका किया था ना, तो इनको अगर हम ऐड करें इन 2 प्रोपोर्शंस को, तो हमें वो मिलना चाहिए ना, क्योंकि और में ऐड वाला ही होगा ना, आइदर दैट और दैट, उनको मिला के इकट्ठा करके हम कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने मैं इसको ऐड करने की कोशिश कर लेती हूँ। ये क्या रिज़ल्ट इधर आ रहा है 0.338 और ये सोयाबीन है और हॉर्स बीन है। तो पीछे जो अलग-अलग से आया था, तो ये सोयाबीन वाला मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ जी। प्रोपोर्शन जो हमें मिल चुका है और इसको यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद प्लस करते हैं इसको और दूसरा वाला डालते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट वो आता है कि नहीं। तो सोयाबीन था और दूसरा था जो अभी एंड पे हम कर रहे हैं उसमें कौन-सा चाहिए हमको? हॉर्स बीन। तो हॉर्स बीन वाला ले लीजिए। ये तो मैं ले चुकी हूँ और हॉर्स बीन वाला ये है। इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद ये सिंपल अरिथमेटिक जो है, ये हम कर लेते हैं एंड यू गेट 0.3380282 exactly that result which we have got using this logical operator or। अगर आप चाहें तो मैं इसको भी आपके सामने एग्जीक्यूट अभी कर देती हूँ। आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और के ज़रिए आपने ये 2 को ऐड किया है। अभी आप सोचें कि क्या 3 को भी कर सकते हैं? यू शुड एक्सपेरिमेंट एंड यू शुड प्ले विद इट। ये वाला मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ और वो इमीडिएटली साथ ही एग्ज़ीक्यूट हो गया एंड यू गॉट एग्ज़ैक्टली द सेम रिज़ल्ट। All the best to you, my dear students.